ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ 2 ਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਰੀਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਡੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ 4 ਜਾਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ 4 ਤੋਂ 6 ਲੈਕਚਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰੀਫ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ x1 y1, b ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ x2 y2, ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। c ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ x3 y3, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਣਾ ਹਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 1, ਦੂਸਰੀ ਰੋ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ 1, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰੋ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ 1। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹਾਫ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ 1। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ x2 y2 1, ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਲਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 10 ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ -10 ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? 10। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਫਾਈਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਫਾਈਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? whose vertices are points, जिनके वर्टिसेस किहड़े पॉइंट ने? पहला पॉइंट है, हाँ जी लिखते हैं -2 -3, -2 -3। दूसरे पॉइंट का नाम है 3 2 3 2। तीसरे पॉइंट का नाम है -1 -8। हाँ जी, एक बार तुसी स्टेटमेंट लिख लो, मैं लाइट सेट कर ला, शायद लाइट खराब होगी। ओके, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिनके वर्टिसेस दिते हैं। मीन आपा जेडी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है उनके वर्टिसेस दिते हुए हैं। आपा शुरू करते हैं, पहला ਅਸੀਂ छोटी जी ट्रायंगल बना लेंगे हैं। पहले वर्टिसेस का नाम a रख देंगे हैं -2 -3, दूसरे वर्टिसेस का नाम b रख देंगे हैं 3 2, तीसरे वर्टिसेस का नाम c -1 -8। अगर 3 वर्टिसेस दिते होन, इथों एरिया किवें फाइंड आउट करते हैं? एरिया लिख लो जी, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल दे एरिया का की फॉर्मूला? बाहर लिख दो हाफ
ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ -2 -3 1 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 2 ਲਾਸਟ ਤੇ 1 -1 -8 ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਾਫ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। मैं चेक कर ਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ -2 ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ -2 ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚਾ 2 1 -8 ठीक है जी। फिर ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 3 ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 3 1 -1 1 चले। हाँ जी नेक्स्ट चलते हैं। उस तो बाद -1 बाहर ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੌਰੀ -1 ਨਹੀਂ +1 ਬਾਹਰ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 3 2 -1 -8 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ -2 -3 3 2 ਪਿੱਛੇ 1 -1 -8 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ -2 ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ 2 1 -8 1 प्लस दे 3 बार ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ 3 1 -1 ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਬਾਰ -2 ਬਾਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ प्लस दे 2 माइनस प्लस दे 8 प्लस दे 3 बार ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ 3 ਆ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ -1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ +1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +1 ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -8 24 8 3 24 ਤੇ -2 ਮਾਈਨਸ ਆਫ -2 ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ प्लस ਦਾ 2 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਤੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 20 4 ਤੇ प्लस ਦੇ 12 माइनस ਦੇ 22 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਫ ਬਾਰ बन गया -44 -42 प्लस दे 12 -42 प्लस दे 12 माइनस दे 3 आंसर तो आ गया -15। बट आपा गल करिए एरिया तो पॉजिटिव होता है अखीर ते तुसी एक लाइन लिखनी है बड़े ध्यान नाल -15 चाहे +15 तुसी लिख दोगे +15 नाल इथे लिख दिया करो साडी गल की हुंदी पई है मैग्नीट्यूड च ठीक है इन्ने स्क्वायर यूनिट +15 स्क्वायर यूनिट बड़े ध्यान नाल इहनू नोट कर लो मैं साइड ते हो जाना। हाँ जी ये सी साडा एरिया लभन दा फार्मूला यूजिंग डिटरमिनेंट मैथड की करना है बाहर हाफ जरूर पाना है भुलना नहीं बाहर हाफ जरूरी होना चाहिए। ये 15 स्क्वायर यूनिट साडा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी ये सी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मीन डिटरमिनेंट दी हेल्प एप्लीकेशन का मतलब है अगर कोई पूछता है एप्लीकेशन का मीनिंग की है तो तुसी कह सकते हो इनू ਅਸੀਂ यूज किथे करीदा डिटरमिनेंट ਦਾ फायदा की है तो तुसी कह सकते डिटरमिनेंट ਦਾ पहला फायदा है ट्रायंगल ਦਾ एरिया ਲੱਭਣ ਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है। देखो ट्रायंगल ਦਾ एरिया ਲੱਭਣ ਚ डिटरमिनेंट ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ट्रायंगल ਦਾ एरिया पता लग गया। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी अच्छा जे आंसर -15 ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +15 ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜੇ ਆਨਸਰ +15 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ +15 ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 15 ਆਇਆ ਸੋਚਣਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ 15 ਆਇਆ ਹੈ किसी और ट्रायंगल का 15 ये रिपीट लगता है तो 10 लिख देना नोट बड़े ध्यान नाल तुसी मैंने जवाब देना है किसी ट्रायंगल का एरिया 10 आया तो उनका ए डिटरमिनेंट का आंसर मीन पहला पॉइंट पीछे 1 दूसरा पॉइंट पीछे 1 तीसरा पॉइंट पीछे 1 फिर इसका आंसर की आया होगा रिपीट अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 10 आया तो उनका डिटरमिनेंट
ਪਿੱਛੇ ਹਾਫ ਪਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ शायद 10 आया होए शायद -10 आया होवे, कुछ भी आ सकता है। सुनो बड़े ध्यान नाल, अगर ट्रायंगल दे एरिया नु सॉल्व करदे करदे -15 आंदा तां भी ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ 15 ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ 15 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਮੀਨ ਜੇ ਏਰੀਆ 10 ਬੋਲਿਆ ਹੈ शायद डिटर्मिनेंट ने सॉल्व करके 10 बोलिया होएगा या -10। आ सब तो इंपॉर्टेंट नोट है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर ट्रायंगल का एरिया 10 आया है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। जे डिटर्मिनेंट का आंसर 10 होंदा तो एरिया से 10 ही बोलना सी। जे डिटर्मिनेंट का आंसर -10 होंदा तो एरिया फिर भी असी की बोलना सी +10 बोलना सी। तो मेरी गल समझ आ गई। एक क्वेश्चन है इनके बेस पे करते हैं, तो नोट लिख लो फिर आप एक क्वेश्चन करते हैं। जेरे जिन्ने जने भी साडे स्टूडेंट वीडियो देखो प्लीज नीचे लाइक ते कमेंट जरूर करया करो। बस इहदे नाल मैनूं ये आइडिया हो जाता है कि किन्ने को स्टूडेंट ने जिन्हां ने वीडियो देखी है पूरी दी पूरी ते किन्ने को समझ पा रहे हो। कुछ डाउट्स होण तां जरूर दस्सिया जे। हुण क्वेश्चन है जरूर करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 2 इथे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ के। बड़ा क्वेश्चन है, आराम नाल करिया जी, ध्यान नाल करिया जी। 2 मार्क्स के विच क्वेश्चन आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाउंड बाय फ्रॉम ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम ट्रायंगल हैविंग पॉइंट्स। ट्रायंगल के पॉइंट्स केड़े ने? ट्रायंगल के पॉइंट्स हैगे ने, सब तो पहला पॉइंट है k, 0 4, 0 k, 0 4, 0 0, 2। ठीक है, विद एरिया, एरिया कितना दिता है 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो कितना बढ़िया क्वेश्चन देता है। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाउंड फ्रॉम ट्रायंगल हैविंग पॉइंट्स। ट्रायंगल दे पॉइंट कितने ने? k 0 4 0। मीने स्टेटमेंट पहला समझिए। मीन जेडी ट्रायंगल है ना, मीन जेडी ट्रायंगल है उनके पॉइंट्स पता है केड़े-केड़े ने? एक तो ट्रायंगल का पॉइंट है ए वाला k, k, 0। एक तो ट्रायंगल का पॉइंट है b 4, 0। एक तो ट्रायंगल का पॉइंट है c 0, 0। मैं ट्रायंगल का पॉइंट ए बी सी, तीन ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। हाँ जी, अगर ये ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स ने तो कहते जी ट्रायंगल का एरिया है ना, एरिया 4 दिता है। बड़े ध्यान नाल सुनना है क्वेश्चन। पता है की है? ट्रायंगल का एरिया 4 दिता होया है। मैं ट्रायंगल का एरिया गिवन है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट नहीं करना, ट्रायंगल का एरिया गिवन है। मेन क्वेश्चन की है फाइंड आउट की करना है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ट्रायंगल ਲਿਖਤੀ, ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟਸ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟਸ। अगर ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ 4 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਫ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣਾ k 0 ਪਿੱਛੇ ਵਾ। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट केड़ा 4 0 पिछे 1। तीसरा पॉइंट 0 2 पिछे 1। तो ये ट्रायंगल का एरिया 4 दिता है। आ भी तो एरिया होंदा है, पर इनका आंसर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर डिटरमिनेंट का आंसर 4 आवे, बोलो डिटरमिनेंट का आंसर 4 एरिया 4, डिटरमिनेंट का आंसर -4 तां भी एरिया 4। मीन जे एरिया 4 है तो डिटरमिनेंट के आंसर दोवें आ सकते हैं। अगर प्लस आया डिटरमिनेंट का आंसर तां भी ਅਸੀਂ 4 बोलांगे। अगर -4 आया इनका 4 एरिया 4, इनका -4 एरिया तां भी 4। क्यों? क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं बार-बार रिपीट तां कर रहा क्योंकि बच्चा प्रॉब्लम आती। फिर भी अगर तुहानू प्रॉब्लम आवे नीचे डिस्क्रिप्शन च जरूर दस दिया जे, कमेंट जरूर कर दिया जे। मैं नेक्स्ट कल दे लेक्चर दे विच इस चीज नू रिवाइज करदा। फिलहाल ठीक है। एरिया हाँ जी हम सॉल्व करते हैं। आ प्लस माइनस एरिया 4, जे एरिया 4 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू +-4। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आएगा एरिया 10, तो तुम इधर लिख दो +-10। आ उधर शिफ्ट हो गया। मीन k 0 1 4 0 1
0 2 1 ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 8, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਉਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 2 ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ, 0 1 0 1 2 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਦੀ 0 ਬਾਹਰ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 4 1 0 ਬਾਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਬਾਹਰ, ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ, 4 0 4 0 0 ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 8। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ 0 ਹੀ ਹੈ, ਕੇ ਬਾਹਰ 0 माइनस से कर देना था -2, आता खत्म ही है, एनु लिख ही देना 0 जो मर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद प्लस था 1 बार इन 0 8 -0 के सामने की है प्लस -8, ये बन गया -2k प्लस दे 8 इज इक्वल टू प्लस -8। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨ -2k प्लस 8 इज इक्वल टू एक ਤਾਂ 8 लिख देना यहाँ -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8, मीन इनका आंसर +8 भी लिखा जा सकता है, इनका आंसर -8 भी लिखा जा सकता है। विजिबल है जी, ये कितना बन गया -2k इज इक्वल टू 0, यहाँ एक ही बन गया -2k इज इक्वल टू -16, इथों k आ गया 0, इथों k आ गया 8, मीन k दे दो आंसर पॉसिबल है। बिल्कुल जी k दे दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। मैं हूं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ 4 ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 4, ਅਗਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ a, ਮੀਨ a b c, ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ 4 ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ a ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਆਇੰਟ a ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ a b c, इनका एरिया भी तो 4 आना सी, मैं चाहे ऊपर वाली ट्रायंगल बना लो a b c, ता भी एरिया 4, मैंने a दी बजाय इत्थे आ जांदा ता भी एरिया 4, ता मैंने k दे आंसर दो पॉसिबल ने। मैं रिपीट करता, अगर एरिया 4 देता है तो तुसी डिटरमिनेंट प्लस माइनस 2 k दे आंसर आएंगे, ये दोनों दे दोनों आंसर साडे वैलिड है। चलिए नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उस तो बाद मैं शुरू करता। हाँ जी, नेक्स्ट हो जाए आप कोलिनियर पॉइंट्स ले। अपना आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर है, यदि स्टेटमेंट जरूर बना लो। मैं सारे बच्चों को एक रिक्वेस्ट करांगा, जो भी काम तुहानू ऑनलाइन मिल रहा उनके नोट्स जरूर बनाए जाए जे, क्योंकि दोबारा पढ़न लगे तो नोट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पैनी। कोलिनियर पॉइंट्स तो तुसी की कहना है, A B C are कोलिनियर पॉइंट्स। मीन A B C तीनों केड़े पॉइंट्स ने, कोलिनियर पॉइंट्स ने। अगर A B C तीनों कोलिनियर पॉइंट्स ने, मीन इको लाइन थे। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब दैट इज दे लाई ऑन सेम लाइन। कोलिनियर पॉइंट वो होंगे ने जो इको ही लाइन पे लाई करते पे ने, मैं सारे दे सारे पॉइंट इको ही, देखो इको ही लाइन पे लाई करते हैं, तो दैट इज कोलिनियर। को मतलब इको, लीनियर मतलब लाइन, कोलिनियर इको ही लाइन पे लाई करते हैं। हुण इन्हां दा ना ये सारे क्वेश्चनां दी एक ट्रिक है। अच्छा गल सुनो, तुसीं ध्यान नाल दस्सिया जी। हाँ जी, बोल सकते हो B C A, मैंने पता तुसीं बोल नहीं रहे, लेकिन फिर तुसीं तुहाडी आवाज़ मैनूं पहुंच जानी। हुण अगर पॉइंट A इत्थे आ तो एक एरिया बनेगा, कुछ एरिया तो बनेगा, ट्रायंगल बन रही है, कुछ एरिया बनेगा। अगर ए पॉइंट में इत्थे बजाए थोड़ा जिहा नीचे करदा तो तुसीं कहोगे सर हुण भी एक ट्रायंगल बन रही है, लेकिन हुण छोटी ट्रायंगल बन रही है, एरिया छोटा हो गया। अगर ए पॉइंट में इत्थे बजाए ए पॉइंट में थल्ले करदा हो
B ਇੱਥੇ C ਇੱਥੇ। अगर A पॉइंट मैं ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, नीचे ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। कोई अगर जिद पकड़ लेता है सर ये ट्रायंगल बन रही है, मैं कहूँगा हाँ यार ये ट्रायंगल बन रही है, पर यह चीज जी ट्रायंगल है जे पॉइंट इत्थे होंदा तां ट्रायंगल जी सी उनका एरिया सी कुछ, एक ट्रायंगल है इनका एरिया है कुछ, पर हुण ये ट्रायंगल छोटी है तो इनका एरिया कुछ है, लेकिन हुण ये होर छोटी है एरिया कुछ है। लेकिन जे इनके ऊपर ही आ जाए तो ये कोलीनियर हो जाते हैं। तो जदों कोलीनियर होण तीन पॉइंट तो उन्हां तो बनन वाली ट्रायंगल दा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दा एरिया की हो जाए करेगा, जीरो हो जाए करेगा। इहदे बारे आपां गल करते हैं। मीन जे तीनों पॉइंट कोलीनियर होण, मीन इक्को ही लाइन ते लाई करते होण, एक तां मतलब है भी इनदी ट्रायंगल ही नहीं बनदी, ट्रू। पर जे कोई इनदी ट्रायंगल बन भी रही है तां उनदा एरिया ही की है, जीरो। इट मीन ट्रायंगल नहीं बनदी। तां कोलीनियर दी असीं ट्रिक याद करांगे। कोलीनियर हो जो इको लाइन ते लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स, ते इन्हां तो कोई ट्रायंगल नहीं बनती। ते जे कोई बनती दिखाता है हाँ बन रही है तो है ही नहीं असलियत च, असलियत च है नहीं, मीन उनका एरिया की आई करेगा जीरो। ट्रिक याद कर लो सारे जने, बोल दो मेरे नाल प्लीज। कोलीनियर पॉइंट्स हो हुंदे ने जिन्हां दा एरिया की हुंदा है, जीरो हुंदा है। कोलीनियर पॉइंट्स हो जिन्हां दा एरिया की हुंदा है, जीरो हुंदा है। हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं। show that question number 3, show that points के मैं स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं। show that points A की है A, B plus C, A, B plus C। दूसरा पॉइंट है B। थोड़ा जब मैं लेंथी क्वेश्चन करांगा क्योंकि मैं अजे तुहानू ज्यादा ट्रिक्स नहीं करांगे। B, C plus A ते C पॉइंट है C, A plus B, C, A plus B। show that A points की ने are collinear। बच्चे मैं एक गल दसी, इनकी एक मेन एक्सरसाइज जो पहला आती है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो मैं हजे लीव करी है, वो लास्ट ते करांगे। सब तो इंपॉर्टेंट है, 6-8 लेक्चर आराम नाल लावांगे अंदर ते। कहंदे शो दैट ए पॉइंट्स की हैगे ने कोलीनियर ने। सब तो पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा शो करो ये सारे दे सारे पॉइंट्स कोलीनियर ने। कोलीनियर पॉइंट्स किवें पता लगदा हुंदा भी पॉइंट्स कोलीनियर हैगे ने या नहीं? कोलीनियर चेक करने वास्ते आपां देखांगे इन्हां तो एक डिटरमिनेंट बनावांगे। अगर वो ट्रायंगल बनावांगे और ट्रायंगल का एरिया जीरो आया तो पॉइंट्स कोलीनियर होंगे। मैं स्टेटमेंट लिखना देखते हैं कि यहाँ गिवन पॉइंट्स आर की है। सब तो पहला ए पॉइंट A, B plus C, B पॉइंट B, C plus A, C, A plus B। गिवन पॉइंट्स आर, मैं कहूँगा these points आर कोलीनियर। ये पॉइंट्स की हुंदे ने कोलीनियर हुंदे ने। ये तीने पॉइंट्स कोलीनियर हुंदे ने अगर की होवे इन्हां तो बनन वाली ट्रायंगल, आ देखो कि ट्रायंगल ABC दिखती बाहर लिख देने AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0। ये तीने पॉइंट्स असी कोलीनियर बोलांगे अगर इन्हां तीनों पॉइंटां तो बनन वाली आ पाए इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0। हुण कहते शो करो ये तीनों पॉइंट कोलीनियर है। कोलीनियर में इको लाइन ते ने, चाहे आप कुछ कर दो चाहे ट्रिक कुछ कर दो। कोलीनियर पॉइंट की ट्रिक की है ना तो ट्रायंगल नहीं बनती, तो जेडी ट्रायंगल बनती कोई झूठ बोलता भी है उनका एरिया की आना चाहिए था 0। तो मैं चेक करने लग गया, मैं वर्ड की पा देता चेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब A पहला पॉइंट कॉमा दूसरी जगह ते B plus C लास्ट ते कितना बार पहला पॉइंट। हम दूसरे की गल करते हैं B, C plus A कॉमा लास्ट ते 1 सॉरी, फिर की C, A plus B लास्ट ते 1।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ 0। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਏਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਵੇ 0। 0 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ 0 ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬੋਲੋ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ 0 ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਏਰੀਆ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਮੀਨ ਏਰੀਆ 0, ਜੇ ਏਰੀਆ 0 ਤਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। सीधे शब्दां च गल करा, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ठीक है ना। जे कोलिनियर हुंदे आ तो एरिया 0 आ जाता है, ते जे कभी एरिया 0 आ जाता है फिर की हो जाते हैं कोलिनियर। दोवां ने मतलब दो जिस्म एक जान वाली गल है, इकट्ठे जीन मरनगे। कोलिनियर एरिया 0 कोलिनियर, दोनों ना इकट्ठे रहना, जिवें भैन भरा इकट्ठे रहंदे ने भावें लड़दे हैं। हाँ जी चलिए, हाँ जी हुण आपां इहदा की चेक कर रहे हैं एरिया। पहली रो दे विच पहला फिर 1। हाँ जी तो सॉरी बड़ी वड्डी गलती रह गई, बाहर की पाना है हाफ। थैंक यू, तुसीं दस्सिया किसी बच्चे कोई बोल रहा सी सर हाफ नहीं पाया, बस मैनूं तुहाडी आवाज़ पहुंच गई, मैं बाहर जल्दी हाफ पा गया। हाँ जी शुरू करते हैं हाफ। हाँ जी पहला ए बार, इनकी रो छोड़ी, इनकी कॉलम छोड़ी, इनकी रो छोड़ी पहली कॉलम, बाकी कितना बन गया C प्लस A कॉमा A1 A प्लस B देना 1। उस तो बाद कौन था, मैं देख ला बोर्ड कितना तो विजिबल है, बोर्ड कितों तक जा रहा है, थोड़ी सी विजिबिलिटी घटती जा रही है, मैं थोड़ा जिहा A वाला पॉइंट यूज कर लेंगे। हाँ जी पहला की बार हाफ बार, A बार इनकी रो छोड़ी, इनकी कॉलम छोड़ी, मैं थोड़ी जी जगह बता लेना पे। अगे माइनस दा बार, माइनस दा A बार, कौन माइनस दा B प्लस C। बच्चे जेडी चीज आ B प्लस C इकट्ठा है तो प्लीज इहनू ब्रैकेट च जरूर रखा जाए, बच्चे ब्रैकेट पाने भूल जाते हैं। माइनस दे B प्लस C, इनकी रो छोड़ी, इनकी कॉलम छोड़ी, दसो कितना बचे, इनकी रो छोड़ी, बाकी बचे B 1 C 1। हुण कौन बार जी प्लस दा, कौन बार प्लस दा 1 बार। 1 लिखो या ना लिखो, चलो मैं लिख देना। इनकी रो छोड़ी, इनकी कॉलम छोड़ी, इनकी रो छोड़ी, इनकी कॉलम छोड़ी, बाकी बचे B C प्लस A C A प्लस B। तो आ होगी ब्रैकेट में, चेक कर लिया विजिबिलिटी है सारे। हाँ मैं थोड़ा जिहा एडजस्ट कर देना कैमरा नूं ताकि सारे नूं विजिबिलिटी हो जाए अपने टॉपिक की, ठीक है जी। हाँ जी तुसीं नोट कर लो, मैं एडजस्टमेंट कर रहा सी। हाँ जी हाफ बार A इनकी रो छोड़ी, इनकी कॉलम छोड़ी, माइनस दे B प्लस C, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਹਾਫ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ A ਬਾਹਰ, this minus this means C plus A into 1, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ A ਮਾਈਨਸ ਦੇ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਦਾ B plus C ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ B into 1B ਮਾਈਨਸ ਦਾ A ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ C प्लस ਦਾ 1 ਬਾਹਰ, ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਣਿਆ BA प्लस दे B स्क्वायर, BA प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस दे C। लो जी हो गया। चलिए हाफ बार मैं ब्रैकेट सारी खोलने लग गया, ए नाले कट्टिया गया, बाकी कितना बचा AC माइनस दे AB, ब्रैकेट हो गया माइनस दे B स्क्वायर माइनस दे BC माइनस माइनस बाहर वाला माइनस ध्यान रखना है, माइनस दे BC प्लस दे BC प्लस दे BC बाहर माइनस है, माइनस दे BC माइनस दे C स्क्वायर बाहर माइनस है, प्लस दे C स्क्वायर। हम आगे शुरू करते हैं 1 नाल गुना BA प्लस दे B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस CA। मेरा तो दिल करता जल्दी कटिंग करता, C स्क्वायर ना C स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर ना B स्क्वायर, AB नाल AB, AC नाल AC, BC नाल BC। आंसर कितना बन गया हाफ इनटू 0, कितना आ गया आंसर 0। लेकिन इत्थे आंसर छड्या ते ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, मैं तो आप जो जरूर कटांगा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। ध्यान नाल सॉल्व करो, चेक की करे एरिया, ते एरिया कितना आ गया 0। लास्ट लाइन लिखो, जे एरिया आ जावे 0 की गल करिए, एरिया 0 कोलिनियर एरिया 0। एरिया 0 का मतलब हुण की आ जाएगा A B C आर कोलिनियर पॉइंट्स।
मीन ਜਿਹੜੇ ABC ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 0 ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸਾਨ ਸੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ एक लास्ट हजे अपना मेरे कल का दिन भी लगेगा ऐसे टॉपिक पे मैंने आपका पहला ए एक्सरसाइज शुरू की थी हम सी शुरू करी है बी अपनी हजे पेंडिंग है कल आप ए ते सी दे कुछ डाउट्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करेंगे हाँ जी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहते इफ a1 b1 a2 b2 and a1 minus a2 comma b1 minus b2 are collinear कहते ये तीनों दे तीनों पॉइंट्स की ने कोलिनियर ने शो करो मैं पढ़ ला की कहते ने शो करो भूल गया भाई क्वेश्चन किधर गया a1 b2 शो करो a1 b2 is equal to a2 b1 आ क्वेश्चन शो करो स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़ो कहते इफ की देता है a1 b1 a2 b2 ये सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ 0 ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ 0 ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲੀ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ a1 b2 a2 b1 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅੱਜ given points are पहले पॉइंट का नाम की a1 b1 दूसरे पॉइंट का नाम a2 b2 तीसरे पॉइंट का नाम a2 minus a1 और गलत लिखा गया a1 minus a2 b1 minus b2 एक ही ने given points are collinear भाई ये तीनों दे तीनों पॉइंट्स की ने collinear शो नहीं करना given ने मीन ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ 0 ਹੈ ਯੈਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ 0 ਹੈ ਤੇ ਜੇ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ आज कोलिनियर गिवन है जे कोलिनियर गिवन है इट मीन एरिया भी 0 गिवन है एरिया 0 है भाई एरिया मीन हाफ सामने 0 है प्रूव नहीं करना असि प्रूफ तक कुछ और करना की प्रूफ करना पड़ेगी a1 b2 ਦਾ आंसर ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ a2 b1 ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਾਂਗੇ a1 b1 1 a2 b2 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਹਾਂਜੀ a1 a2 b1 b2 ਤੇ 1 ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ 1 ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਇਟ ਮੀਨ ਏਰੀਆ 0 ਤੇ ਜੇ ਏਰੀਆ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ 0 है आज क्वेश्चन कुछ और है की क्वेश्चन है a1 b2 b1 a2 आ हाफ उधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हाफ उधर 0 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ अपने आप मिट गया हाफ 0 ਨਾਲ मल्टीप्लाई होया ਤੇ आप भी 0 हो गया हाँ जी हाफ उधर मल्टीप्लाई हो गया तो दसो की बन गया a1 b1 1 a2 b2 1 a1 minus a2 b1 minus b2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ 1 ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਗਾ a1 ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ b1 1 b1 minus b2 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਦੇ b1 ਬਾਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ b1 ਬਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ a2 1 a1 minus a2 ठीक है जी उस तो बाद प्लस द 1 बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 0 0 ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ a2 b2 a1 minus a2 b1 minus b2 अगर किसी दोस्त ने डे 1 डिटरमिनेंट ही देखा तो पहला प्लीज डे 1 डिटरमिनेंट देखा जी उस तो बाद ही डे 2 देखा जी सीक्वेंस वाइज देखोगे मेरा यकीन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ a1 बार सॉरी a1 बार हाँ जी कितना बन गया b1 हमने माइनस करना है माइनस दे b1 प्लस दे b2 ठीक है जी जब रो करे b1 ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ b1 ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੋੜੀ ਦੀ ਕਾਲਮ ਛੋੜੀ a2 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ a1 प्लस ਦਾ a2
अगली गल +1 बार देखियो किते गलती ना हो जाए, इन्हां नूं गुणा करना कितना बन गया a2b1 a2b2। हुण ये जो मल्टीप्लाई होया माइनस करना है b2a1 माइनस दे b2a1, ये उल्टा माइनस माइनस प्लस दे a2b2। सामने की है इसे हो गया तो डिटरमिनेंट आता जिन्ना भी आता पहला a1 बार इनकी रो छोड़ी इनकी कॉलम छोड़ी b1 गलत हो गया मेरा a1 बार इनकी रो छोड़ी इनकी कॉलम छोड़ी इत्थे आना सी b2 गलत हो गया ना इनकी रो छोड़ी क्योंकि रो छोड़ के अब b2 1 a1 आना सी। हुन मैं देख ला माइनस दे b1 बार इनकी रो छोड़ी इनकी कॉलम छोड़ी a2 1 a1 माइनस a2 1 बाकी ओके है। नेक्स्ट a1 1 बार इनकी रो छोड़ी a2 b2 ओके डन। आ गलती हो गई सी पहला इत्थे की आना सी b2 आना सी ठीक है जी। अब आना सी b2 माइनस तक बाकी ओके है। मैं फिर भी कैलकुलेशन चेक कर ला माइनस a1 प्लस a2 b1 माइनस a2 b2 माइनस a वाला कर लेना। हां जी कुछ कैंसिल आउट हो रहे थे कर लो नहीं तो रहने दो, कैंसिल आउट कोई भी नहीं हो रहा। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। एक कितना बन गया a1 b2 माइनस a1 b1 प्लस a1 b2 माइनस पहला a लिखूं करूंगा मैं a पहला लिख देना a2 b1 प्लस दे a1 b1 माइनस दे a2 b1 हुन दी गल प्लस दे a2 b1 माइनस दे a2 b2 माइनस दे a1 b2 प्लस दे a2 b2 इज इक्वल टू 0। पहला a1 b1 वाले टर्म देखो अगर लिखिया ना तो a1 b1 वाली टर्म आ रही, मैं मार्कर चेंज कर लेना ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाए। ये दोनों कैंसिल हो a1 b1 कैंसिल हो गया जी a1 b1 कैंसिल आउट। हाँ जी और चेक कर लो और केड़ा कैंसिल आउट हो रहा है a2 b2। हाँ जी किसी बच्चे की आवाज आई मेरे पिछों कहता सर a2 b2 ते a2 b2 कैंसिल कर दो। अच्छा टर्म कैंसिल हो और देखो की कैंसिल हो रहा है a1 b2 आ रहा जी a1 b2 भी कैंसिल आउट हो गया। मैं 6 टर्म कैंसिल आउट हो गई जिन्ना जिन्ना थे मैं डिजाइन बना रहे हैं 6 टर्म कैंसिल आउट हो चुके हैं। और देख लो की कैंसिल आउट हो गया a2 b1 आ हो गया जी कैंसिल आउट a2 b1 या गया a2 b1 बाकी की बचा बाकी बचे आ वाला a1 b2 a2 b1 ये बच गया की बच गया a1 b2 माइनस a2 b1। थोड़ी कैलकुलेशन औखी सी तो आराम नाल चलते हैं। आई थिंक अब ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया ना ਤਿੰਨੇ पॉइंट की ने कोलिनियर ਦਾ मतलब एरिया की है 0 एरिया ਨੂੰ 0 ਭਰਿਆ ਤੇ ਸੋल्व ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a1 b2 a2 b1। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ। उल्टा लिख सकते हो रिक्वायर्ड कंडीशन अगर लिखना चाहते हो ये साडी रिक्वायर्ड कंडीशन है। स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं कि तीन पॉइंट देते हुए ने तीनों दे तीनों पॉइंट की देते हैं कोलिनियर ने इट मीन पहली लाइन कोलिनियर एरिया 0 है सॉल्व करें एरिया 0 फिल करें ते कैलकुलेशन करते हैं। उन्होंने कहा शो ए करो शो तो ਅਸੀਂ कर ही देंगे शो मतलब कोई कंडीशन बनानी होगी एरिया 0 करते करते ਅਸੀਂ कंडीशन देखा सही है a1 b2 a2 b1 which is required condition। आज के दिन का टॉपिक अपना ही है डे 2 जिते चे ਆਪਾਂ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव